नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में जनता से सीधे संवाद किया। गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों की समस्या सुनी और संबंधित अधिकारियों को उनके समाधान के लिए निर्देश दिए गए। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें और मांगे लेकर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने एक एक कर लोगों की बात सुनी और कई मामलों में तत्काल कार्रवाई के लिए निर्देश भी दिए। जनता दर्शन कार्यक्रम के जरिए मुख्यमंत्री सीधे आम लोगों से जोड़कर उनकी समस्याओं के समाधान का प्रयास कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान के भारत में राजदूत मोहम्मद फतेह का बड़ा बयान सामने आया है। राजदूत मोहम्मद फतेह ने कहा है कि फिलहाल इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि ईरान संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल के साथ बातचीत के लिए तैयार है या नहीं। उन्होंने होर्मुज़ जल दम रूम मध्य के आसपास की स्थिति पर भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि अभी इस मामले में कोई खास नया विकास या फैसला नहीं हुआ है। ईरानी राजदूत ने यह भी कहा कि ईरान ने हमेशा ईमानदारी दिखाई है, लेकिन दूसरी तरफ से खुली दुश्मनी और संघर्ष की स्थिति पैदा की गई। उन्होंने दोहराया कि ईरान युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर स्थिति को बढ़ाया जाएगा तो तेहरान को जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। Ready for any kind of negotiations with US? Up to now, no, because we were in the negotiation table. They destroyed the negotiation table. They started the war. You know that at the first time, the elementary school targeted to the aggression. They killed 160 girl students. This is terrible. This is terrible. Yes, but there is a big concern over closing of Strait of Hormuz, and it is going to, raise the price of fuel for all the countries. Is there any kind of a negotiation going on this from the Indian side or with other countries to open the Strait of Hormuz? We have no any news. We have no any formation in this case. But I want to say that Iran demonstrated sincerity, and they showed open hostility, and they started, but the duration on our hands.
the duration of the war in our hands. This is very important. Thank you. US submarine has torpedoed Iranian vessel. How do you respond? And is this basically going to escalate the situation? They want to, up to now, they want to cost and benefit. But fortunately, they knows very well the capacity and capability of Iran. And but we don't war. They started. And we announced several times the duration of the time, the finishing or the ending of the war, it is up to our hands. This is very important. Initially, Donald Trump has said that this campaign is going to take at least 4 weeks. Now he has changed his position. Now he has said that it's going to take at least 2 weeks. Yes, I think that they change every time their stance. This is up to our capability and capacity, and they knows very well. They knows very well where is Iran and where is the location of Iran, where is the geography of Iran. But unfortunately, the Zionist regime wants to destroy and disturb all the region, all the properties of the region. Thank you. Iran is attacking neighborhood. Its neighborhood. Like we don't attack. Please, we don't attack. They provide the bases. You have heard that 3 F-15 shut down. What's the meaning? This is provide we have a good relation with our neighbors, and we announce to all neighbors we attack 2 bases of the United States. They provide the bases for the United States. My brother, from these bases, targeted my elementary schools. They targeted 160 students, elementary students. This is very important. We have a good relation with our neighbors, and we announce that, and they know very well we attack only the bases. Are you in touch with the Indian side? 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 No. We have no anything. We have no any negotiation. We have no any send the message, and because they started. The Indian side. Have you spoken to the Indian side? Your conversation with the Indian side? You can ask from the Indian side. Yeah. How do you see the process? पटना से इस वक्त एक बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा नामांकन के मौके पर पटना पहुंचे और एनडीए के नेताओं के नामांकन को लेकर बड़ा बयान दिया। अमित शाह ने कहा कि नितिन नवीन, नीतीश कुमार, रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा और शिवेश कुमार के राज्यसभा नामांकन के लिए वे पटना आए हैं। उन्होंने कहा है कि नितिन नवीन लंबे समय तक बिहार में सफल राजनीति करने के बाद अब राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका निभाने जा रहे हैं और राज्यसभा के माध्यम से संसद में अपना योगदान देंगे। अमित शाह ने कहा कि बसपा के करोड़ों कार्यकर्ता और एनडीए के सभी साथी राष्ट्रीय राजनीति में उनका स्वागत करते हैं। इस दौरान अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा नामांकन पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि बहुत लंबे समय के बाद नीतीश कुमार एक बार फिर राज्यसभा सांसद के रूप में राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा है कि 2005 से लेकर अब तक मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार का कार्यकाल बिहार के इतिहास में स्वर्णिम पन्नों में दर्ज होगा। उनके मुताबिक नीतीश कुमार ने बिहार को जंगल राज से बाहर निकालने और गांव-गांव तक सड़क और बिजली पहुंचाने तथा विकास की गति को तेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गृह मंत्री ने कहा है कि लंबे राजनीतिक जीवन में विधायक, संसद, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रहने के बावजूद नीतीश कुमार पर कभी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। उन्होंने उनका सादगी और स्वच्छ छवि और सार्वजनिक जीवन के मूल्यों का भी सराहना की। अमित शाह ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की योजनाओं को बिहार के हर घर तक पहुंचाने में भी नीतीश कुमार की अहम भूमिका रही है। आज मैं
पटना में श्री नितिन नवीन जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा, श्री नीतीश कुमार जी, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री रामनाथ ठाकुर जी, श्री उपेंद्र कुशवाहा जी और श्री शिवेश राम जी के राज्यसभा के नामांकन के लिए यहां पर आया हूं। श्री नितिन नवीन जी राज्य में लंबे समय तक यशस्वी राजनीति करने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और अब वो राज्यसभा के माध्यम से संसद में भी अपना योगदान देंगे। हम सब एनडीए के सदस्य, भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ता नितिन नवीन जी का राष्ट्रीय राजनीति में और संसद में स्वागत करते हैं। आज बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने भी राज्यसभा में अपना नामांकन किया है। इसके साथ ही बहुत लंबे अरसे के बाद श्री नीतीश कुमार जी फिर से एक बार राष्ट्रीय राजनीति में राज्यसभा सांसद के नाते प्रवेश करेंगे। 2005 से लेकर आज तक नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उनका एक कार्यकाल एक प्रकार से बहुत यशस्वी रहा। ये कार्यकाल उनका बिहार के इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में लिखा जाएगा और बिहार के विकास के सारे मायने को उन्होंने गति देने का काम किया। उन्होंने अपने शासनकाल में बिहार को जंगल राज से मुक्त करने का काम किया। इन्होंने बिहार की सड़कों को न केवल गांवों तक जोड़ा, बिहार की सड़कों की स्थिति को भी सुधार किया। इतने लंबे करियर में विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री रहते हुए उनके कुर्ते पर कभी दाग नहीं लगा। पूरा जीवन भ्रष्टाचार के आरोप लगने बगैर इतना लंबा राजनीतिक सफर शायद ही किसी राजनेता ने तय किया हो जो नीतीश कुमार जी ने किया है। बिहार में हर गांव, हर घर में बिजली पहुंचाने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। हमेशा नीतीश जी सादगी, शुचिता और सार्वजनिक जीवन के उच्चतम मूल्यों के पक्षधर रहे, जिनका पालन उन्होंने भी किया। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11 साल तक बिहार को हर प्रकार से आगे ले जाने में बहुत बड़ा योगदान किया और उनके नेतृत्व में ही मोदी जी की भेजी हुई सभी योजनाएं बिहार के जन जन तक पहुंची। 1974 के जयप्रकाश आंदोलन के वो प्रमुख नेता रहे हैं और तब से लेकर आज तक पूरा जीवन जेपी के सिद्धांतों पर उन्होंने बिताने का प्रयास किया। आज फिर से एक बार वो राज्यसभा के सांसद के नाते दिल्ली आ रहे हैं। मैं और एनडीए के सभी साथी उनका हृदय से स्वागत करते हैं और उनका कार्यकाल जो मुख्यमंत्री के नाते हैं वो हमेशा बिहार के लोग याद भी रखेंगे, उसका सम्मान भी करेंगे। मैं फिर से एक बार नितिन नवीन जी और नीतीश कुमार जी का राज्यसभा में आने का स्वागत करता हूं। धन्यवाद। दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिनलैंड के राष्ट्रपति ओलेक्जेंडर स्टॉप के बीच मुलाकात के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी किया गया। फिनलैंड के राष्ट्रपति ओलेक्जेंडर स्टॉप ने कहा है कि दुनिया तेजी से बदल रही है और वैश्विक व्यवस्था एक बड़े परिवर्तन के दौर पर गुजर रही है। उन्होंने कहा है कि इस नए वैश्विक क्रम की दिशा तय करने में भारत और ग्लोबल साउथ के देशों की अहम भूमिका होगी। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा हुई है और जिसमें खास तौर पर पश्चिम एशिया और यूक्रेन में जारी संघर्ष का जिक्र किया गया। ओलेक्जेंडर स्टॉप ने कहा कि यूक्रेन के खिलाफ रूस का आक्रामक युद्ध 4 साल से जारी है और यह स्थिति चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि सभी पक्ष इस बात पर सहमत है कि युद्ध को खत्म करना सभी के हित में है और फिनलैंड के राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि स्थायी शांति तभी संभव है जब संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों और
अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान किया जाए। The world is changing. We are living through a transition in the global order, and India, together with its friends in the global south, will determine the direction in which this order will go. And that is one of the key issues. It's been so fruitful to discuss and understand your approach. Today we discussed security issues in the region. We have conflict in both regions, in West Asia and also, of course, in Ukraine. And for us, Russia's war of aggression against Ukraine has lasted for too long, 4 years. We agreed that ending the war is in everyone's interests. A lasting peace can only be one that respects the principles of the United Nations. Today, in my speech at Raisina, I will once again call for a change in the multilateral system where the division of labor and power would reflect today's world, and therefore I think a seat in the UN Security Council for India is of utmost importance. We of course also discussed today the relationship between India and the EU, and I have to say that the trade agreement and the strategic partnership that was forged just a little while back between the EU and India is of great significance. When the world is in transition, the United States, Russia, China, and many others, the fact that we can have a values and interest-based partnership between the European Union and India is very important. Now, of course, we're also strengthening the relationship between Finland and India. As you just mentioned, we are deepening our dialogue in many sectors, and our goal is to at least double our trade. A good beginning is the fact that we have 20 Finnish companies here who are traveling with me from a wide range of industries, from technology to quantum, to satellites, to networks, to food, and to green tech, which you mentioned. Our dialogue is further strengthened by the fact that we have a very strong Indian community in Finland. I know these numbers don't sound big to you, but for us they are. There are over 20,000 Indians that reside in the capital region of Helsinki and actually in Espoo. A gentle reminder, Finland has a population of 5.6 million, which is a little bit like a suburb in New Delhi. So you have to understand that for us figures are of a different scale. Our Indian friends are a very valued member of our society and contribute significantly to our economy and culture. And it's good to also have the mayor of Espoo here with us today. Finally, I would like to thank you, Mr. Prime Minister, for our excellent discussion. Anytime you have allotted a short amount for one-to-one discussion and you run over it extensively, you know that the discussion has to be good, and we really enjoyed that. So sorry to the delegations that we were so late, and thank you once again for your warm hospitality for this state visit. I really appreciate it. दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते के महत्व पर बात की। प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह समझौता 2026 की शुरुआत में हुआ और इसके जरिए भारत और फिनलैंड के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग और मजबूत होगा। उन्होंने डिजिटल प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा और स्थिरता जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों की साझेदारी को अहम बताया। और प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया कि नोकिया के मोबाइल फ़ोन और टेलीकॉम नेटवर्क ने करोड़ों भारतीयों को जोड़ने में योगदान दिया है। साथ ही फिनलैंड के आर्कटिक के सहयोग से भारत चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज भी बनाया गया, जो भारत की इंजीनियरिंग क्षमता का प्रतीक है।
वर्ष 2026 की शुरुआत में ऐतिहासिक भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। यह एग्रीमेंट भारत और फिनलैंड के बीच ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी सहयोग को और प्रबल करेगा। डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबिलिटी जैसे क्षेत्रों में भारत और फिनलैंड महत्वपूर्ण साझेदार हैं। नोकिया के मोबाइल फोन और टेलीकॉम नेटवर्क ने करोड़ों भारतीयों को जोड़ा है। फिनलैंड के आर्किटेक्ट के सहयोग से हमने चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया है। फिनलैंड की साझेदारी से हमने नुमालीगढ़ में दुनिया की सबसे बड़ी बंबू टू बायोएथेनॉल रिफाइनरी भी बनाई है। फ्रेंड, ऐसे महत्वपूर्ण उदाहरणों से प्रेरित होते हुए प्रेसिडेंट स्टुप की इस यात्रा में हम भारत फिनलैंड संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन डिजिटलाइजेशन एंड सस्टेनेबिलिटी का रूप दे रहे हैं। यह पार्टनरशिप एआई से लेकर 6G टेलीकॉम तक, क्लीन एनर्जी से लेकर क्वांटम कंप्यूटिंग तक कई हाईटेक क्षेत्रों में हमारे सहयोग को गति और ऊर्जा देगा। साथ ही डिफेंस, स्पेस, सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल जैसे की सेक्टर्स में भी साझेदारी और गहरी बढ़ेगी। भारत और फिनलैंड जैसे लोकतांत्रिक और जिम्मेदार देशों की यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पूरे विश्व के लिए ट्रस्टवर्दी टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन सुनिश्चित करने में योगदान देगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों को देखते रहिए होमबिट टीवी भारत।